आलू ले लो, आलू ले लो, टमाटर, हरे टमाटर, लाल टमाटर, पीले टमाटर, प्याज ले लो, मिर्ची ले लो, आलू ले लो। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So this is 12 October and today is Dashera. So happy Dashera to all of you. Hope you'll stay healthy and happy in future also. So I want to say thank you to all of you for being part of this journey. So we have finally crossed 367 subscribers. So thanks to all of you once again and hope we will cross 500 subscribers in the end of the November. So let's start our today's class or today's journey. So today is 12 October and आज छुट्टी थी तो we will try to cover the backlogs जितना भी बाकी है. बैकलॉग्स इन सेंस कि जो अपना रिवीजन बाकी है वो, और अदरवाइज जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं लाइक रोटेशनल मोशन मेरा चल रहा है अभी, जिसमें से मेरे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं. एंड नाउ वी विल ट्राई टू कवर 4th वाला लेक्चर जो 1 hour and 15 minutes की इसकी ड्यूरेशन थी. और आज की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी है, नहीं तो सर के लेक्चर्स तो भाई 2 घंटे से मतलब नीचे के हो ही नहीं सकते हैं, और हो गए ना मतलब तो उसमें तुम्हें 3 घंटा तो भी लग जाएगा, मतलब 1 घंटा तुम्हें नोट्स बनाने. तो सर के लेक्चर के लिए तुम्हें फिजिकली भी साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं रहते, बहुत हार्ड रहते. तो लेट्स डू अवर लेक्चर. सो या आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नाउ. एंड पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी भूख लगी तो कुछ केले की चिप्स खाए. सो टुडे इट वॉज रेनिंग सो हेवी, जिसके कारण लाइट भी चली गई थी, और अच्छा हुआ कि मैंने लेक्चर्स डाउनलोड करके रख लिए थे. So today I received this package. So basically I have ordered Oswald books for class 11 boards. So I am using Oswald की books since class 9. तो मैंने उनके Oswald के सैम्पल पेपर साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी यूज़ किए फॉर द क्लास 10, जिसके कारण मेरा इतना अच्छा परसेंटेज सिक्योर हुआ था. सो एज़ यू नो देयर आर ओनली फ्यू मंथ्स लेफ्ट फॉर क्लास 11 की बोर्ड्स, और इस कंडीशन में you need some a very well book that will guide you towards the examination very well. So you can definitely go for Oswald, and they provide a very lot of the fantastic content. So you can see the stickers on the book that ensures that book are new and arrive in a good condition to you. So as basically I am PCB 11 grader student, so I have ordered physics, chemistry, biology and English core. So they will definitely help me a lot in NEET examination also. So how are question asked in CBSE may be frequently asked in NEET examination too. So they have also given study time. So एक particular chapter करने के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए वो भी उन्होंने दिया है. And they have also given syllabus in detail on the front page and topics to be covered and revision notes in detail. So they have also given scan to know more about the topic. So अगर किसी को और जानकारी चाहिए so they can definitely go to scan that particular topic. So they have also given mind maps, so you can revise a particular topic in 15 to 20 minutes. So here are the commonly made error जो कि एक student करता है, and they have also given answering tip, so the examiner can satisfy with the answer. And here are the mnemonics they have given, and the mnemonics are super awesome for revising things for the long terms. And here are the short answer and the long answers. So they have also given diagram based question that are mostly prominent asked questions, and they have also given the competency based question जिसमें most of the students अपने marks गवा के आते हैं, and case based study questions. So when I was in class 10 now, I have solved their case based study questions and they were literally so good, and now I am going to try them in class 11 also. And they have given NCERT corner where you can find all the NCERT related questions and the prominent one asked questions. Also the Oswald books have added NCERT exemplar corner where you can find all the NCERT exemplar important questions. Also they have added this new concept of the keywords. सो एज़ यू नो NCERT की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इस समय पे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं. सो फॉर द केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स दे हैव ऑल्सो गिवन शॉर्ट नोट्स, एंड इन्होंने जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी इसके लिए दिए हैं. एंड आई थिंक निमोनिक्स जो कि केमिस्ट्री के लिए, एज यू नो केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी में आधे से ज़्यादा चीज़ें रटने वाली है, तो इस समय पर आई थिंक निमोनिक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे. एंड दे हैव ऑल्सो गिवन NCERT की डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि कंपिटेंसी बेस्ड लाइक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट कैन इंक्रीज योर लेवल. So if you are willing to buy these books then I have given link in the description. तो मैंने description में link छोड़ दी है, so you can definitely go and purchase these books. So let's use Oswald books for revision. So I am using here this book for the locomotion and movement का revision and also for the question practice, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से question दिए हैं.
सो फाइनली आई एम डन विथ रीडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक्स और उसके बाद मैं बैठी थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वन शॉट लेक्चर करने के लिए, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल था और ये 10 हार्स का लेक्चर था। सो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बट ऑल द थिंग यू नीड इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। वन शॉट लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा अगर आप अपने तरफ से पॉज करके खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सो दैट आई वॉज नाउ डूइंग, और इसमें से मेरा 5 हार्स का हो चुका था लेक्चर। सो आज दशहरा था तो मेरी इतनी ही पढ़ाई हुई और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी और थोड़ा सा ब्रेक लिया था आई थिंक फॉर टुडे, और उसके बाद हम कल से वापस स्टार्ट करेंगे। एंड ये थे कुछ चॉकलेट जो कि बचे थे। सो वी विल हैव दिस व्हाइल डूइंग द लेक्चर। सो इन द मॉर्निंग मैंने रोटेशनल मोशन का लेक्चर्स ही किए थे और उसको करते करते टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने किया था ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लाइव लेक्चर जो कि चल रहा था, और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज मेरा पूरा दिन रोटेशनल मोशन करने में चला गया था, मीन्स क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो इट्स ओके, पहले मैं चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। सो फाइनली लेक्चर ओवर हो चुका है और आज की तपस्या सीरीज़ में मेरा 7 आउट ऑफ 7 स्कोर रहा था और मेरी 178 रैंक रही थी। एक्चुअल में मेरी 132 थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा देर से आंसर किया था जिसके कारण इतना बड़ा चेंज आ गया था। और आज जल्दी टीचर ने छोड़ दिया था थोड़ा सा, मतलब कुछ 10 मिनट पहले छोड़ा होगा टीचर ने। और ये मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए थे, और नोट्स क्लास के साथ ही बनाती हूँ मैं। सो उसके बाद 6:15 को लाइव लेक्चर चालू था जिसमें आज सर ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच स्केल पढ़ाया। और ये मतलब पीएच स्केल मेरे को थोड़ा सा हार्ड नहीं लगा, लेकिन आयोनिक में से केमिकल इक्विलिब्रियम मुझे हार्ड लगा था। एंड ये अपकमिंग टेस्ट जो कि 20 अक्टूबर को होने वाली है उसमें आने वाला है। सो इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये अक्टूबर चल रहा है, उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर, फिर ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। एंड ऑर्गेनिक करते करते 11th भी ख़त्म हो जाएगी एंड उसके बाद फिर 12th चालू हो जाएगी। फिर कुछ महीने बाद नीट एग्जामिनेशन भी आ जाएगी। सो अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट लेटर। एंड दिस वॉज रियलिटी चेक फॉर मी ऑल्सो। सो टुडे इज़ फॉर सुधांशु सर एंड मोहित सर बर्थडे। सो MR सर केक काटने आए थे एंड दिस इज़ सेकेंड टाइम MR सर इज़ कमिंग इन आवर लाइव क्लास। पहले तो समाप्ति मैम एंड टॉपर्स के साथ आए थे एंड केक काटा एंड फिर बहुत सारी बकलोली भी चली। सो आज सर का पढ़ाने का मन भी नहीं था तो सर ने आज जल्दी छोड़ दिया था, जिसमें से आधा टाइम MR सर अपना ले चुके थे। तो आज आई थिंक 45 या 50 मिनट्स की पढ़ाई हुई होगी। सो ये रहे मेरे नोट्स जो कि मैंने आज के बनाए थे और कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे सर के साथ। एंड दिस वॉज फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड डेफिनेटली like this video and comment on my channel. Thank you for watching. Bye.